चरितस, ओम नमो चरितस, ओम नमो चरितस। ओम। ये बहना जो बंद हो गया, ये है वीरती। हाँ, તમે એને બીજા નામ આપવાની શું કામ કોશિશ કરો છો? વીરતી એટલે વીરતી. વાય યુ ટ્રાય ટુ કમ્પેર? એટલે આમ, એટલે તેમ, એટલે ઓમ, એટલે કાંઈ નહીં, કેટલે આમ. સમજાયું? વીરતી એટલે શું સમજાણું? વીરતી એટલે કે ગમે એટલા નિમિત્ત આવ્યા વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિના, તમે એમાં ભળ્યા નહીં, એનું નામ વીરતી. એટલે કાંઈ નહીં. વીરતી એટલે આ. આ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ એનો ફળ શું થવું જોઈએ? વીરતી. કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા આપણે ડિસ્ટર્બ ન થઈએ. એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એના વિશે કંઈ આપણું કાર્ય ન કરીએ, કરેક્શનનું. નિષ્ક્રિય નથી બનવાનું, પણ આપણે એની અસરમાં ન આવીએ, એનું નામ વીરતી. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે કંઈ પણ હરકત કરે એમાં આપણે ન ભળીએ. કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ડિસ્ટર્બ ન કરે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણને ડિસ્ટર્બ ન કરે, કોઈ પણ જીવ પણ ના જ્ઞાનો શું જીવડું હોય ને એ આપણને હેરાન કરી નાખે. હા, હમણાં મધુમાખી આવે અને તમારી આમ માથે પૈરા કરે તો તમે ત્યાં બેઠા રહો? બરાબર ને? કાંઈક તો કરો ને. બેઠા રહેવાનું, કાંઈ નહીં થાય. એને એ મૈત્રી જેવી એને મૈત્રી મળશે ને એટલે હાલી જશે ઓટોમેટિક. આ છે પ્રભાવ એનો. સો ધીસ ઇઝ વીરતી. આ છે વીરતીનું સ્વરૂપ. હવે આને કોઈ પણ વસ્તુથી કમ્પેર કરવાનું નહીં. વીરતી ઇઝ વીરતી. એટલે આમ, એટલે તેમ, એટલે ઓમ, એટલે આપણે વીરતીને બગાડી નાખી. વીરતીનું સ્વરૂપ વીરતી છે, બસ, ધેટ્સ ઇટ. વીરતીનું સ્વરૂપ સમજી લીધું. શું સમજ્યા? એનાથી ડિસ્ટર્બ ન થઈએ, જેટલું ન થઈએ એટલી વીરતી હાયર. વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિ અને જીવ અને પરમાणु, આ પાંચ संयोग આપણી સાથે कंटिन्यूअस છે. हाँ, ये हमारे साथ कंटिन्यूअस होते हैं और हम इससे जितने डिस्टर्ब नहीं होते उसका नाम है वीरती. હા, ઈ રે તો જ આ તમે અચીવ કરી શકો. એના વગર સંભવ જ નથી. મૈત્રીની હાજરી વગર ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ. विदाउट मैत्री दिस कैनॉट एग्जिस्ट. 5 समिति 3 गुप्ती भगवान ने इसका अभ्यास करने के लिए बताया, मात्र इसके लिए. यही है वीरती. यही वीरती की अवस्था प्रकट करेगा. डिटैचमेंट, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, कोई भी आपको असर नहीं करता है. ये है वीरती. हाँ, तो સો એ પ્રોસેસ છે જેનાથી આ વીરતી પ્રગટ થાય. देश वीरती ने सर्व वीरती. देश वीरती यानी क्या? यानी आपने निर्णय लिया कि अभी मैं व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु से डिस्टर्ब नहीं होगा, तो यू स्टार्ट योर एफर्ट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड देश वीरती. देश वीरती मीन्स पार्शियल वीरती. आप थोड़े सक्सेस हो रहे, थोड़े वापस गिर रहे, थोड़े सक्सेस हो रहे, थोड़े गिर रहे, इसलिए उसको पार्शियल वीरती. सर्ववीरती यानी क्या? सर्ववीरती यानी यू हैव अचीव्ड. You do not get affected by all 5 at all. That is called सर्ववीरती. सर्ववीरती यानी अरिहंत पद. देशवीरती यानी साधु पद. साधु कौन होता है? तो ये उसका पुरुषार्थ करता है. साधक हो या साधु हो, हम लोग कौन है? हम लोग साधक है. थोड़ा टाइम करते हैं फिर वापस भूल जाते हैं, जैसा है वैसा. इसीलिए ये आराधना में बार बार बुलाते हैं, आओ रोज आओ. एक दिवस जो गापलू मायरू तो पाछा जेवा था. बराबर के नहीं?
હા 15 દિવસમાં એક ગેપ મારીને જો તમારી અંદર જેટલી અસર ભેગી થઈ હોય ને બધી આમ સુરસુર્યું બોલી જાય. Am I right? Yeah. So this is a constant, instant and constant motivation, force. इसीलिए ये 15 दिन है. આજે 10મો દિવસ છે એટલે જો રોજ આવતા હોય તો એક લેવલ આવે ને જો હવે 11મે દિવસે પાછું ગાબડું માર્યું તો પાછું એ ગાબડુંને રિકવર કરતા બીજા 4-5 દિવસ લાગે. समझ में आ रहा है? So if you are with this flow continuously for 15 days, and that's why Sit Chakra Yantra helps you, because you have missed but the yantra is always here. So it will charge us, not only here but in our house also. Not only us, or not only me, but everybody, whoever comes in your house or who is there in your हाउस. ये जो चार्ज हो रहा है वो सबको लाभ मिल रहा है, मिलेगा. तो जिसके घर में नहीं है ऐसा यंत्र, निर्णय ले लेना. देश संयम ने सर्व संयम, इंद्रिय केरु करो शमन, मन वचन काये पाप हरो, चारित्र धरनी सेवा करो. अच्छा, अभी हमारे अंदर अगर ये सम्यक चारित्र, ऐसा देशवीरति सर्ववीरति नहीं है तो उसका उपाय क्या? तो यहाँ बोलते हैं सेवा करो. ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो साधु भगवंत हैं, साधक हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, हाँ, हमारे जीवन में यही 3 आ सकते: साधक, साधु भगवंत और ज्ञानी पुरुष. ये 3 आ सकते. ये 3 हमको पोषण दे सकते इस माध्यम का. ये ध्यान में रखना, वो पोषण दे रहे हैं कि नहीं, ये यू हैव टू चेक इट आउट. सब साधक आपको पोषण देगा ऐसा जरूरी नहीं है. हर साधु भगवान देंगे ऐसा जरूरी नहीं है. ज्ञानी भगवान जरूर देंगे. कोई भी संप्रदाय का, कोई भी सिस्टम का हो, ज्ञानी हमेशा ज्ञानी होता है. साइंटिफिकली ज्ञानी सब एक ही लेवल के होते हैं. कोई भी सिस्टम के क्यों न हो, ज्ञानी ज्ञानी होते हैं. उसके संपर्क से, उनके सहवास से, उनकी छत्र छाया से, उनकी निश्रा से ऑटोमेटिक काम होता है, कार्य होता है. कौन सी सिस्टम के, इट डजंट मैटर एट ऑल. ज्ञानी ज्ञानी होते हैं, बिकॉज दिस इज अ साइंटिफिक सम्यक अवस्था. साधक और साधु भगवंत वो सिस्टम के बायस हो सकते हैं, ज्ञानी कभी नहीं होता है. ज्ञानी ज्ञानी होते हैं. ये ध्यान में रखना. वो कौन से संप्रदाय को फॉलो करते, कौन से धर्म को फॉलो करते, कौन से रिलीजन के हैं, इट डजंट मैटर इन द लेवल ऑफ ज्ञानी. तो यहाँ जो सेवा करने की बात है वो तीनों की. हमें तो क्या है, हमारे संपर्क में जो ज्ञानी की राह कौन देखे, ज्ञानी है कि नहीं, हमको कैसे पता चले? तो यहाँ इसलिए भगवान ने कहा साधक, साधु, भगवंत और ज्ञानी, जो आपकी समझ में आए इनकी सेवा में रहना. आस्ते आस्ते आपको उसका सहवास होते रहेगा और आपके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस आते रहेंगे. ये मैं जो बता रहा हूँ ऐसा कुछ न कुछ निर्माण होते रहेगा. सो ये करते रहना. वीरती धरना प्रण में पाए, देव सभा में इंद्र महाराय, भव समुद्र ने तरवा काज, चारित्र धर्म 6 महाजाज. बोले जो इस फ्लो में है ये अल्टीमेट है. कौन से फ्लो में है? ये वीरती, सर्ववीरती, जिसके अंदर फ्लो हो रही है कंटिन्यूअसली. यही है सम्यक चारित्र का शुद्ध परिणाम, परम परिणाम. और इनकी निश्रा में, उनकी सेवा में हमेशा रहना. ऐसा जैसे ज्ञान की बात हुई थी तो वहाँ क्या बताया था? ज्ञानी का बहुमान करते रहना. जरा भी आप चूक गए ना, देखो आप बहुमान न करो लेकिन अपमान तो जरूर न करना, क्रिटिसाइज जरूर न करना. अगर आपने कर भी दिया दिल से, मन वचन काया ऐसे गए काम 12 के भाव में, आपका तो बैंड बज ही गया.
100% बच गया। ऐसे ही यहाँ वापस चेतावनी दे रहे, सेवा करते रहो मौन होकर, वो जो बताए ऐसे करते रहो, अपना दिमाग बुद्धि जरा भी मत लगाना। उनकी अवहेलना किया तो गया काम से। अभी तो मिले हैं, अनंत काल तक नहीं मिलेंगे। आपका कुछ पुण्य था इसलिए मिल गए, आपने अवहेलना की, क्रिटिसिज्म किया तो गए 12 के भाव में। गोसालक ने लाइफ टाइम महावीर स्वामी का अपमान करने की कोशिश की, विरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट 48 आवर्स में उन्होंने जो पश्चाताप किया, खाली लास्ट 48 आवर्स, जिंदगी भर वो उल्टा किया, लास्ट 48 आवर्स में उन्होंने मात्र पश्चाताप किया और सबको ब्रॉडकास्ट किया कि मैं धूत हूँ, मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया है, इनके विरुद्ध बनाया है, लेकिन वास्तविक अरिहंत ये है, मैं नहीं हूँ। मैंने जीवन भर कहा है कि मैं अरिहंत हूँ, मैं नहीं हूँ, ये है। ये मेरे अंतिम शब्द है, मैं क्षमा चाहता हूँ सबकी। आप मेरे जाने के बाद उनको ही फॉलो करना, स्ट्रिक्टली करना। ऐसे वो कहकर गए तो उनका कल्याण हो गया लास्ट में मिनट पे। उन्होंने लास्ट 48 आवर्स में जो पश्चाताप और अनुमोदना की, वो जीव बच गया। नहीं तो जो ऐसा उल्टा सीधा करता है 12 के भाव में, वो खत्म, वो निगोद की ओर बढ़ रहा है, बस उसकी स्पीड निगोद की ओर। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाने आएगा। तीर्थंकर परमात्मा की करुणा भी नहीं बचा पाएगी, ऐसा एक कृत्य है। ज्ञानी की अवहेलना यानी अल्टीमेट है, खत्म, कोई नहीं बचा पाएगा। कभी मत करना। समझ में नहीं आता है, चुप रहो, दिमाग को भी चुप रखो, मुंह को भी चुप रखो, एक्शन को भी चुप रखो। गड़बड़ मत करना, नहीं तो 12 के भाव में जाओगे। तो ज्ञान के बारे में भी बताया, या सम्यक चारित्र में भी यही बात की है। 5 प्रमाद ने दूर करे, 5 विषय छंडी विचरे, पाप रहित चारित्र जीवन, संसार सुखनु करे वमन। यहाँ एक सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि सम्यक चारित्र क्या होता है, सम्यक चारित्र दशा क्या होती है। तो बोलते हैं पाप रहित जीवन होता है, यानी कोई दोष करते नहीं है, और संसार सुखनु करे वमन, यानी it's a crude way of saying that they don't get affected by anything in this world, they don't get carried away, वो कहीं भी बहकावे में नहीं आते हैं। करे वमन यानी उल्टी, संसार सुख का उल्टी कर, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं उल्टी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी जिसको हम सुख समझते हैं, जिसको हम थ्रिल समझते हैं, हम क्या है, इमोशन से थ्रिल समझते हैं। 5 सेंसेस, मन और बुद्धि, ये 7 की गेम है, बराबर है। तो 7 की गेम में जो नहीं आते हैं वो है सम्यक चारित्र की अवस्था। तो इसी ऐसी जहाँ भी है, आपके अंदर ये हो रहा है कि नहीं, वो चेक करो। नहीं हो रहा है तो मेहनत बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो, ज्ञान वाला पुरुषार्थ। मेहनत यानी खमा समणा बढ़ाओ, क्रिया बढ़ाओ, जाप बढ़ाओ, माला बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। अटेंशन बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ, अलर्टनेस बढ़ाओ। समझ में आया? जागृति, अलर्टनेस, अटेंशन, ये बढ़ाओ। ये बढ़ने से ही हाँ हमारे अंदर कंटाला ना आए। हमको जल्दी जल्दी बोर होते हैं। अभी भी कई लोग बोर हो रहे दिख रहा है मुंह पे, क्योंकि वो जो विषय होता है ना, उस वो ग्रेस्पिंग का वो एक ऊपर हो गया, अभी बहुत हो गया, बस अभी ज़्यादा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बोर होना शुरू। हाँ, होता है ऐसा। नमो झिणानम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार
परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभव धारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।